Good morning, students. In today's class, first we'll discuss about the syllabus for higher secondary first year topic to be deleted because of COVID-19 pandemic. As you already know, that 30% syllabus removed by Assam High Secondary Council as well as CBCS. CBSE. So today we will discuss about the topic which are deleted from Assam High Secondary Council for HS first year students. Okay. So first we'll discuss about mathematics. What is the topic related by Assam High Secondary Council for this pandemic? Okay. So you can see subject mathematics. First, set. Okay. So set in our first unit we have set. So from set, what is deleted? Complement of a set. Complement of a set deleted, and properties of complement. Okay, so just like a complement, like these things. Okay, those who have already learned about set, they know, but those who don't know, then no need, because complement of a set and properties of the complement already deleted from the syllabus for this year, particular for this year. Okay, so now relation and function. Unit 2, relation and function, algebra of function and graph of function. Okay, algebra of function, it is deleted, and graph of function, these two part it is removed from the syllabus this year. Okay, generally questions not come from here, question come related to the domain range, so that's why this type of questions not come in higher secondary examinations, but then also this is deleted. Okay, but this does not change our syllabus, it's almost same, whatever we learn, same thing you have to. That means from set and relation function, just only 4 topics deleted. These are not that much important for the questions in the examinations. Okay, some questions came from last 2-3 years about from complement, but algebra of function and graph of a functions, not that much questions generally come in exam. Okay, so we have to do relation and function. Okay, because this is very important topic. Okay, next, trigonometric function, you will see graphical general solution of trigonometric functions removed. Okay, general solution means, suppose just like this, we know if sin x is equal to 0, then x is equal to what, in कौन सा वैल्यू में साइन 0 होता है, साइन 0 में भी 0 होता है, पाई में भी 0 होता है, माइनस पाई में भी, माइनस प्लस दोनों में ही 0 होता है पाई में. ठीक है, फिर 2 पाई, -2 पाई हो या +2 पाई हो, उसमें भी 0 होता है. फिर 3 पाई, ऐसा करके जितना भी पाई आएगा सब में साइन का वैल्यू 0 होता है. तो उसको हम लोग सिनरली हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू n पाई, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है, मतलब ये n जो है ये निगेटिव या पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ में अगर n का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा. तो x का वैल्यू जो है यहाँ में 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसा करके डॉट डॉट इन्फिनिटली वैल्यू, मेनी वैल्यूज है. ये सारा वैल्यू में साइन का वैल्यू 0 होता है. ठीक है, पाई मतलब 180, ये 260, सॉरी 360, ऐसा करके चलता जाएगा. तो x इज इक्वल टू n पाई, मतलब ये सारा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है. तो इसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन सारा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब ये जो इक्वेशन है sin x इज इक्वल टू 0, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो ये इक्वेशन में ऐसा कितना वैल्यू है x का जिसमें sin का वैल्यू 0 आएगा. तो ऐसा बहुत सारा वैल्यू है. तो इस सब वैल्यू को क्या, अगर हम लोग शॉर्टली लिखेंगे तो उसको हम लोग n पाई लिख सकते हैं. n का वैल्यू डिफरेंट नंबर लेने से डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा. तो ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन. तो ये जो पार्ट है इसको डिलीट कर दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन से इस साल. ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुका है. तो यहाँ से भी डिलीट किया है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं किया. यहाँ में मैथमेटिकल इंडक्शन रिलेटेड टू द डिवीजन एंड इनइक्वलिटी, मतलब जिसमें डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट जो था, सपोज कोई एक नंबर दे दिया कि x+1 ऐसा कुछ हम लोग किया था जो x+2, सो दैट इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3 बट डिविजिबल बाई 3. तो इस टाइप का प्रॉब्लम को कैंसिल कर दिया. और एक था जो और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा है x+3 डॉट अप टू एंड लेस देन समथिंग, ये लेस देन वाला, ये इनइक्वलिटी वाला, इसको भी कैंसिल कर दिया. तो मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा डिवीजन वाला, और ये लेस देन वाला, लेस देन ग्रेटर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है,
बाकी सारा आएगा। ओके, सो नाउ तो ये जो लिस्ट दिया गया है हाई सेकेंडरी काउंसिल से, ये टॉपिक टू बी डिलीटेड, मतलब ये सारा टॉपिक डिलीट किया गया है, ठीक है, ये सारा एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट विल सी प्रिंसिपल मैथमेटिक्स बोल दिया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्या डिलीट किया? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर क्वेश्चन आता भी है, वो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं ये टॉपिक, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। मतलब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने से कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आता है, जैसे कि क्लास 10 में क्या था शायद, b² - 4ac, ये ग्रेटर देन 0 होने से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन आता है, बाई इक्वल टू 0 होने से रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन आता है, बट लेस देन 0 होने से क्या होता है, ये हम क्लास 10 में नहीं मिला लेस देन 0 वाला। लेस देन 0 होने से b² - 4ac जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये लेस देन 0 होने से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आता है, तो वही पार्ट को डिलीट किया। तो ये कुछ टफ चीज़ है नहीं, ये डिलीट करना या ना करना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, तो ये तो सिंपल चीज़ था। ओके, नेक्स्ट विल सी लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसमें क्या दिया है, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। लीनियर इनइक्वालिटीज़, ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल वाला मतलब जो 6.3 हम लोग किया था, इसको डिलीट कर दिया गया। मतलब एग्जाम में 6.1 या 6.2 में से क्वेश्चन आने का चांसेस है। 6.3 वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो गया। एंड द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, जैसे कि हम लोग एप्लीकेशंस यूज़ किया था, जो ये केमिकल कुछ बॉडी एसिड वाला प्रॉब्लम्स जैसे किया था मिसलेनियस में, तो वो एप्लीकेशंस वाला चीज़ को भी डिलीट कर दिया गया। तो मतलब 6.3 और ये एप्लीकेशन वाला प्रॉब्लम्स जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, वो अभी डिलीट कर दिया, तो ऑब्वियसली ये सब नहीं आएगा तो अभी, ठीक है, बट जानना चाहिए था हम लोग को, तो इसलिए हम लोग जान लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिकल में भी यूज़ होता है, ठीक है। बट ग्राफिकल सॉल्यूशन कौन सा आएगा, तो अभी 6.1 और 6.2 में से ही आएगा लीनियर इनइक्वालिटी का, ठीक है, बाकी सारा डिलीट कर चुका है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आज स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, सर इसमें से डेविएशन ऑफ NPR एंड NCR। तो NPR निकालने वाला जो प्रोसेस है और डेविएशन NCR वाला, उसको डिलीट कर दिया गया। जब हम लोग करेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो ये चीज़ मतलब इसको डेविएशन नहीं चाहिए, मतलब किस तरीके से आया वो चीज़ नहीं चाहिए, जस्ट इसका प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन से आएगा। तो इसका जो डेविएशन पार्ट है वो एलिमिनेट कर दिया गया NPR से NCR, ठीक है, NPR एंड NCR। ओके, नेक्स्ट थिंग बाइनोमियल थ्योरम में से जनरल टर्म, मिडिल टर्म एंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब ये जनरल टर्म, मिडिल टर्म से आई थिंक 8.2 वाला एक्सरसाइज जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया, जनरल टर्म और मिडिल टर्म वाला, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम्स में से, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ x वाला भी, ठीक है। ये हम लोग, ये तो जनरली इसका साथ रिलेटेड है, हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो ये 8.2 जो है वो उसको एलिमिनेट कर दिया गया। सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसमें से क्या कर दिया, डिडक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस 1 + 2 + 3, मतलब ये स्पेशल सीरीज़ वाला एक पार्ट था इन फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स, उसको डिलीट कर दिया गया फॉर AP एंड GP। मतलब यहाँ में जो स्पेशल सीरीज़ बोल के एक पार्ट है 9.3 आई थिंक 9.3 और 9.4, उसको डिलीट कर दिया गया, जिसमें ये सब का सम निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो बाकी सारा आएगा सेम टू सेम। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन, इसको डिलीट कर दिया गया। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट है, एक पॉइंट और लाइन के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, इतना टफ है नहीं ये चीज़, लेकिन फिर इसको डिलीट कर दिया गया कि पॉइंट और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकालने का जो प्रॉब्लम्स था वो सब एलिमिनेट हो जाएगा, अभी नहीं चाहिए वो सब। कॉनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको डिलीट नहीं किया गया। जैसे कि कॉनिक सेक्शन मतलब ऐसा कौन रहता है, जो लोग को मिला है वो लोग तो मालूम ही है, जो लोग नहीं मिला वो लोग देख लो। ऐसे टाइप का कौन होता है, राइट सर्कुलर कौन, जिसको काट के, जैसे कि इसको अगर बीच से काट दिया तो ये सपोज एक पेड़ है, पेड़ को बीच में से काट दिया, तो बीच में से काटने के बाद हमें क्या आता है, एक सर्कल का जैसा आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कौन को, ये कौन है, कौन को हम लोग कैंसिल मतलब इसको ब्लेड से काट दिया तो मतलब क्या निकलेगा, एक सर्कल वाला शेप निकलेगा, तो ठीक है। अगर इसको हम लोग इस तरीके से एंगल करेंगे, मतलब डायरेक्ट काटने से सर्कल आएगा, अगर हम लोग ऐसे एंगल में काटेंगे तो पैराबोला होता है, फिर ऐसा एंगल या हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो इस सारा जो सेक्शन है इसको बोलते हैं, और एक है इलिप्स, इसको एक एंगल में काटने से इलिप्स बनता है, इलिप्स का शेप होता है ऐसा टाइप का होता है इलिप्स।
ठीक है। तो ये जो शेप्स बनता है ये कौन को कटने के बाद तो इसको बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका इक्वेशंस भी होता है, तो जो हम लोग को कर्व आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। तो ये चीज़ चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, तो इसलिए इसको डिलीट नहीं किया। ये एकदम ईजी भी है, उतना टफ नहीं है, ठीक है, तो इसको डिलीट नहीं किया। फिर लिमिट एंड डेरिवेटिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट डिलीटेड, क्योंकि लिमिट एंड डेरिवेटिव डिलीट हो गया तो सेकंड ईयर में जाकर प्रॉब्लम हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कर पाओगे, डिफरेंशिएशन कहाँ से कर पाओगे, तो इसलिए ये कैलकुलस पार्ट डिलीट नहीं किया गया, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, ठीक है। और स्टेटिस्टिक्स में से क्या डिलीट कर दिया, देखो स्टैंडर्ड डिवीजन डिलीट कर दिया, वेरिएंस एंड एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, एप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ में ये एस डी यूज़ करके सी वी निकालना होता है, वो वाला चीज़ एलिमिनेट कर दिया, वेरिएंस एलिमिनेट कर दिया और स्टैंडर्ड डिवीजन एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में से एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब इसमें से जो लास्ट वाला पार्ट है उसी को ही एलिमिनेट कर दिया। तो पहले 2-3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ से क्वांटिफायर, इम्प्लीकेशंस, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स, ये सारा एलिमिनेट कर दिया। यहाँ में है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये सारा कुछ एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है जिसमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रूथ टेबल वाला, ट्रू फॉल्स वाला कुछ होता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। हमें एक ही क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन इस ईजी आने वाला है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक डिलीट कर दिया गया, तो क्वेश्चन तो ईजी होगा, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से देखने से मोर देन 80 मार्क्स ईजिली आ जाएगा, ठीक है। सो जो लोग अच्छे से पूरा सब चीज़ को देखेगा तो उसको तो 100 में 100 ही मिलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ नहीं आएगा, तो मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन ईजी होने वाला है, ठीक है। सो ट्राई करना सब लोग ही, देते मोर देन 90 या 80 मार्क्स तो एकदम ईजिली आने वाला है, थोड़ा अच्छे से ट्राई करने से, ठीक है। ओके, सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज नंबर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक्सरसाइज नंबर 7, ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें है डिविएशंस, ये चीज़ एलिमिनेट कर दिया, NPR NCR वाला डिविएशंस, ठीक है, ओके। सो लेट्स सी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, सो परमुटेशन मीन्स क्या होता है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट किस तरीके से अरेंजमेंट, जैसे कि सपोज वी हैव 3 लेटर्स A B C, ये 3 लेटर हैं सपोज, ठीक है, ये 3 लेटर हम लोग को दिया गया है, सपोज हम लोग को 3 लेटर ही दिया गया है, तो अभी बोला कि इसको अरेंज करो, ठीक है। अभी अरेंज करने के लिए अभी कैसे अरेंज करेंगे, ये हमें 2-2 करके भी ले सकते, अरेंज करने के टाइम में सिंगल A B C भी अरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज 2-2 करके लेके भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज बोला कि हमें 3 लेटर दिया गया है, तो इसमें से 2-2 करके लेटर को लेके अरेंज करो, 2-2 लेटर को लेके, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 2 लेटर को मैंने लेके, कोई भी 2 लेटर, मैं फर्स्ट AB को लिया, ये हो गया एक अरेंजमेंट, फिर मैं लिया BC को, ये हो गया अनदर अरेंजमेंट, ओके। एट ए टाइम 2-2 करके लेटर हम लोग को, देखना मैंने क्या बोला, टोटल हम लोग को दिया गया है 3, टोटल हम लोग को दिया गया 3, और हम लोग को बोला है कि 2-2 करके, मतलब एट ए टाइम 2-2 करके लेके, एट ए टाइम 2 लेटर को लेके अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ में 3 लेटर हैं, तो फर्स्ट मैंने यहाँ से 2 लेटर लेना है, तो मैंने फर्स्ट AB को लिया, ठीक है, फिर BC को लिया, फिर और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, देखो AC को हम लोग अभी तक लिया नहीं है, तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, एक भी छूटना नहीं चाहिए, तो A और C को भी ले लो, ठीक है। तो AB को ले लिया, BC को ले लिया और AC को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ में तो हो गया ये 3, बट ये 3 ही बनेगा क्या, और भी इसका अरेंजमेंट मतलब मालूम है कि पोजीशंस, जैसे कि 3 आदमी हैं, कोई एक इधर, इसको हम लोग फर्स्ट ये आदमी को यहाँ में बिठा दिया,
इसको मिडिल में बिठा दिया, इसको यहाँ में बिठा दिया। बट ऐसा नहीं करके हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ये वाला आदमी को लास्ट में बिठा सकता है, ये वाला को फर्स्ट में बिठा सकता है, इसको सेकंड में बिठा सकते हैं। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब जस्ट पोजीशन को चेंज करना, ठीक है। तो कितना वैसे हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि ए बी सी है, तो इसमें से फर्स्ट हम लोग लिया ए बी, देन बी सी को लिया एंड देन ए सी, ठीक है। तो अभी देखो और पॉसिबिलिटीज़ है कि अरेंजमेंट का। तो ये जो 3 तो हो गया, अभी और भी पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे कि अगर मैं बी को आगे लिखा और ए को बाद में लिखा, ठीक है। ये तो ए बी था, बट यहाँ में क्या हो गया, ये बी है, ठीक है। मतलब ए और बी, सपोज 2 पर्सन है, ये फर्स्ट चेयर में बैठा हुआ है, बी सेकंड चेयर में बैठा हुआ है। तो अभी मैं बी को पहले लेके आया, मतलब बी अभी फर्स्ट चेयर में बैठा हुआ है, ए अभी सेकंड चेयर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये ए बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए। सिमिलरली बी सी को भी लिख सकते हैं सी बी। तो ये भी पोजीशन चेंज हो गया, सी फर्स्ट आ गया, बी बाद में चला गया, फिर यहाँ में देखो सी आगे आ गया, ये बाद में चला गया, ठीक है। तो इसमें देखो एट ए टाइम हम लोग दो लेटर को लिया, ठीक है। 3 लेटर दिया हुआ था, बट एट ए टाइम कितना लिया, 2 लिया। तो ए बी बी सी ए सी, फिर बी ए सी बी ए सी। तो ये हो गया ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट। बट इसमें मैंने रिपीटेशन अलाउ नहीं किया, मतलब एक लेटर को 2 बार नहीं लिखा है, या मैं कुछ बोला नहीं है। देखो कि बोला नहीं कि इसमें रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। बट सपोज हम लोग ले कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक लेटर को रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसका मतलब है क्या, इसमें बोला है कि एट ए टाइम 2 लेटर को लेने के लिए। बट अगर हम लोग सेम लेटर को ले लिया, सपोज ए ऐसा भी तो ले सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि 2 लेटर बोला है। तो ये तो बोला नहीं कि दोनों सेम नहीं ले सकते। तो अभी अगर हम लोग ये मेंशन कर दे कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब एक लेटर को हम लोग 2 बार नहीं ले सकते, ठीक है। तो सपोज हम लोग एक लेटर को 2 बार नहीं ले सकते, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब सेम लेटर को 2 बार यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड होने से हम लोग ये 3 लेटर में से 2 लेटर को एट ए टाइम यूज़ करने से कितना वैसे उसको अरेंज कर सकते हैं। 3 लेटर में से 2 करके लेने से कितना वैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक लेटर को अगर 2 बार यूज़ नहीं कर सकते, तो ये 3 लेटर को हम लोग कितना वैसे अरेंज कर लिया। 3 लेटर में से 2 करके लेके 3 लेटर में से 2 लेटर लेके हम लोग कितना वैसे अरेंज कर लिया, ए बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, सपोज इसमें तो मैंने 2 करके लिया ना। सपोज कोई लोग बोल सकते हैं कि 3 करके लेने से क्या हो, ठीक है। तो मैं 3 करके लेके भी दिखा देता हूँ कि अगर हम लोग एट ए टाइम 3 करके लेंगे, एट ए टाइम अगर 3 करके लेंगे, 3 एट ए टाइम 3 लेटर को, तीनों में से तीनों को ही लेंगे, तो ऐसा भी ऐसा ले सकते हैं, ए बी सी बी ए, ऐसा करके जाएगा। फिर मैंने क्या लिखा, ए को फर्स्ट लिखा, फिर बी और फिर सी, फिर सी को आगे लिखा, नहीं तो ऐसा करके लिखा, बी ए सी, ठीक है। बी को आगे कर दिया, बी ए सी, ये भी डिफरेंट बन गया। फिर इससे भी डिफरेंट बन सकता है, जैसे कि ये बी सी ए, बी सी ए, ठीक है। ये ए सी था, इसको हमने सी ए कर दिया। फिर यहाँ में देखो ए सी बी, ए को सेम में रखा और बी और सी को चेंज कर दिया, सी बी, ठीक है। सिमिलरली सी को यहाँ में रखा, फिर ए बी, फिर सी को रखा, बी ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें एट ए टाइम 2 लिया था, यहाँ में एट ए टाइम 3 लिया था, इसमें एट ए टाइम 3 करके लिया, ठीक है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए एक लेटर को हम लोग 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ में भी एक लेटर को एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं किया। देखो ऐसे भी तो हम लोग कर सकते थे, ए तीनों को ए ले लिया, तीनों सी ले लिया। बट यहाँ में रिपीटेशन नॉट अलाउड लिखा है, मतलब एक लेटर को 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। तो कितना अरेंज कर सकता है, ठीक है। तो एक लेटर को हम लोग एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं किया, तो कितना बार अरेंज कर सकते हैं, ये हम लोग निकाला, ठीक है। तो अभी देखो, अगर ये चीज़ को हम लोग यहाँ में तो मैंने कर दिया प्रैक्टिकली, क्योंकि 3 में से 2 करके लेना बहुत इतना टफ नहीं है, हम लोग 2 करके लेके ऐसा कर दिया, ठीक है। सपोज यही चीज़ को बहुत बड़ा बोल दिया। सपोज यहाँ में तुमको दे दिया कि ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। इसमें से ये जो
इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर दिया हुआ है, 7 लेटर दिया हुआ है। इसमें से हम लोग दो दो करके कितना अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसमें से 7 में से हम लोग 3 3 लेके कितना अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 3 लेने से जैसे ए बी सी आएगा, फिर ए बी डी, ठीक है। तो ऐसा करके करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ में तो कम था, 3 में से दो दो करके लिया, तो इसलिए हम लोग इतना इजीली कर लिया, ठीक है। बट यहाँ में बहुत सारा नंबर दे दिया, देखो बहुत सारा लेटर दे दिया, यहाँ में 8 लेटर दे दिया। तो यहाँ से अगर हम लोग 3 3 लेटर को अरेंज करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किसको लिखा किसको नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ में ही देखो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 4 करके लेंगे तो और भी कन्फ्यूजन आएगा, जैसे कि ए बी सी डी, ठीक है, फिर सी बी ए डी, फिर अभी तक ई एफ को मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो ऐसा बहुत सारा बनने वाला है, ठीक है। तो अभी देखने में लग रहा है कि ओनली 10 20 बनेगा, लेकिन नहीं, उससे भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग ये ऐसा 3 होने से दो दो करके लेने में बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा उससे ज़्यादा अगर 10 15 नंबर दे दिया, उसमें से 5 5 करके लेके अरेंज करो बोल दिया, तो इतना ईजिली हम लोग उसको अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि उसको कन्फ्यूजन आ जाएगा कि हम लोग कौन सा लिखा हुआ कौन सा नहीं लिखा, क्योंकि कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। बट उसको हम लोग शॉर्टकट करने के लिए ये जो परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें से हम लोग बहुत इजीली उसको अरेंज कर सकते हैं, ये सारे अरेंजमेंट विदाउट रिपीटिशन और विथ रिपीटिशन ऑल्सो हम लोग दोनों प्रोसेस में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो प्रोसेस मैंने अभी दिखाया है, इसमें 3 में से 2 करके लिया तो कितना आया टोटल 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट आया, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग शॉर्टली कैसे निकालेगा, ठीक है। तो उसका भी एक प्रोसेस है। देखो टोटल नंबर इसमें कितना दिया, टोटल लेटर कितना दिया, प्रोसेस दिखा देता हूँ। टोटल लेटर दिया है हम लोग के पास, टोटल लेटर है 3, और हम लोग का एट ए टाइम कितना करके लेना है, दो दो करके लेना है। तो टेकन एट ए टाइम टेकन एट टाइम 2, ठीक है। और इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, इसका एक शॉर्टकट प्रोसेस में दिखा देता हूँ कि ये सारा नहीं लिख के भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये लिखने के बहुत टाइम जाएगा, एक एक करके ए बी सी बी ऐसा करके। अगर ऐसा 3 है इसलिए हम लोग लिख पाए, अगर 50 60 दे दिया, अगर 10 15 भी दे दिया, तब भी हम लोग के लिए 10 में से 3 3 करके लेना भी हम लोग के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा अगर 200 300 भी आ गया तब भी हम लोग नहीं लिख सकते ऐसा करके, ठीक है। लेकिन 10 या 8 दे देने से तो 1000 4000 5000 जैसा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखने में नहीं लग रहा है कि यहाँ में ओनली 6 ही आया, 1 2 3 4 5 6, और कोई पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने ए बी को लिखा, बी सी को लिखा, सी ए सी को लिखा, बी ए सी बी सी ए, तो और मैंने जितना भी पॉसिबल था सबको लिख दिया। अभी हमें ऐसा और एक भी कॉम्बिनेशन तुम दिखा नहीं पाओगे जिसको मैंने नहीं लिखा, ठीक है। दो दो करके 3 में से दो दो करके लेटर लेने वाला जो कॉम्बिनेशन जितना पॉसिबल था सब मैंने लिख दिया। अभी हमें एक भी छूटा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ में ऐसा 10 लेटर दिया होता तो हम लोग का कन्फ्यूजन हो जाता, क्योंकि कम से कम बहुत ज़्यादा आ जाएगा उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा, 1000 2000 जैसा आ सकता है। तो इसलिए कैसे लिखा होगा इतना ज़्यादा, तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड चाहिए। तो उसके लिए देखो कैसे करना है, जब भी ऐसा बोलेगा तो उसको फर्स्ट एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। अभी देखो इसमें एट ए टाइम कितना बोला है, एट ए टाइम 2 बोला है। टोटल लेटर तो जो दिया ये होगा, जनरली टोटल लेटर जो बोलते हैं दिया रहता है उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल। तो एन का वैल्यू कितना दिया 3, और एट ए टाइम जो है उसका हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर का वैल्यू कितना है 2। एट ए टाइम कितना लिया हम लोग, दो दो करके लिया। इस प्रॉब्लम का बात कर रहा हूँ, इसका नहीं, ठीक है, इसका बात कर रहा हूँ मैं। तो 3 लेटर है उसमें से दो दो करके लेना है, ठीक है। तो दो दो करके लेना है। तो ये गिवन जो लेटर नंबर ऑफ लेटर उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एट ए टाइम जो है एट ए टाइम जितना हम लोग पकड़ेंगे क्वेश्चन में दिया रहेगा एट ए टाइम कितना लेना है, उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉक्स ड्रॉ करोगे इसमें कितना बॉक्स बनाना है वो डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक है। ये टेकन एट ए टाइम अगर 2 है तो यहाँ में 2 बॉक्स बनाना है। कैसे, एक ये बॉक्स का बीच में एक लाइन दे दो तो ये 2 बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ में 3 होता तो हम लोग यहाँ में और एक लाइन खींचता तो 3 बॉक्स हो जाता, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ में एट ए टाइम 2 बोला है तो इसलिए 2 बॉक्स बनाया, ठीक है। तो ये वाला है यूनिट प्लेस और ये वाला है 10th प्लेस। ये है यूनिट प्लेस फर्स्ट प्लेस और ये है 10th प्लेस। जैसे नंबर को हम लोग काउंट करते हैं, जैसे कि 12 है तो ये इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको बोलते हैं 10th प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये है यूनिट प्लेस और ये है 10th प्लेस। मतलब ये जो है ये फर्स्ट प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब किसी भी नंबर के इस प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला प्लेस को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अभी देखो टोटल हम लोग के पास कितना लेटर है, ओवरऑल कितना लेटर दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ अच्छा है कि क्या लेटर दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कितना लेटर दिया वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें कितना लेटर दिया, 3 लेटर दिया।
3 लेटर दिया, तो ये 3 लेटर में से ये बॉक्स को हम लोग कितना वे से फिल कर सकते हैं, ये 3 लेटर से हम लोग ये बॉक्स को कितना वे से फिल कर सकते हैं, ठीक है। 3 लेटर से ये बॉक्स को हम लोग कितना वे से फिल कर सकते हैं। सो हम लोग के पास 3 लेटर है, तो ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स को हम लोग कितना वे से फिल कर सकते हैं। देखो आइदर मैं यहाँ में ए पुट कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या है, ए बी सी 3 लेटर है, तो आइदर मैं यहाँ में ए पुट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ में बी पुट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ में सी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। आइदर ए पुट कर सकता हूँ, नहीं तो बी पुट कर सकता हूँ, नहीं तो सी पुट कर सकता हूँ। तो हम लोग के पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। 3 लेटर है, तो तीनों में से किसी को भी हमें पुट कर सकता है, ठीक है। ए को भी पुट कर सकता हूँ यहाँ में, बी को भी पुट कर सकता हूँ यहाँ में, सी को भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ में वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं यहाँ में ए को पुट किया या बी को पुट किया या सी को पुट किया, इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कितना वे से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में कितना लेटर है, ए बी सी, तो आइदर मैं यहाँ में ए दे सकता हूँ या बी दे सकता हूँ या सी दे सकता हूँ, मतलब कितना वे से फिल कर सकते हो इसको, 3 वे से इसको फिल कर सकता हूँ, 3 वे, ठीक है। बिकॉज आइदर में अगर एक फर्स्ट वे होगा ए, सेकेंड वे होगा बी, थर्ड वे क्या है सी, तो ये तीनों में से किसी को भी दे सकता हूँ, तो ए भी फिल कर सकता हूँ, बी भी फिल कर सकता हूँ या सी भी फिल सी भी फिल कर सकते हो। सो 3 ऑप्शन है हम लोग के पास, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ में लिखा कि 3 वे, ठीक है। तो अभी देखो सपोज हम लोग यहाँ में कोई एक लेटर को फिक्स कर दिया, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको लिखने का जरूर नहीं लिखने से भी होता है, तो मैं जैसे ऐसे लिख दिया कि सपोज यहाँ में बी दे दिया, तो बी तो यहाँ में फिक्स हो गया, ठीक है। तो बी हम लोग ए प्लेस में, ये सेकंड प्लेस में बी दे दिया, ठीक है, तो सॉरी फर्स्ट प्लेस में बी दे दिया यूनिट प्लेस में, ठीक है। तो अभी इस प्लेस को हम लोग कितना वैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ में कंडीशन था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब एक लेटर को अगर दे दिया यहाँ में तो फिर वो लेटर रिपीट नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस में हम लोग बी को दे दिया और सेकंड प्लेस में अगर बी को दे दिया तो बी दोनों बी हो जाएगा। तो ये तो रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल के बोला था मैंने जब ये मैंने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ में देखो रिपीटेशन तो बी वाला पार्ट तो नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल के लिखा, तो एक लेटर को 2 बार तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए बी जैसे यहाँ में दे दिया, ठीक है, मैंने यहाँ में बी लिखा है, बट ऐसा कोई बात नहीं कि बी को ही देना है, यहाँ में ए भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, तो क्या दिया हम लोग को मालूम नहीं है सपोज, ठीक है। तो एक लेटर हम लोग यहाँ में दे दिया, कोई भी हो, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो कोई एक लेटर हम लोग यहाँ में दे दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास कितना लेटर बचा हुआ है, क्योंकि जो यहाँ में दिया उसको हम लोग यहाँ में पुट नहीं कर सकते, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि अगर यहाँ में बी दे दिया फिर यहाँ में भी बी दे दिया तब तो दोनों बी हो जाएगा, बी वाला पार्ट तो यहाँ में लिया नहीं है मैंने, क्योंकि मैंने बोला था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एक लेटर को हम लोग 2 बार यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो एज यहाँ में बी दे दिया तो यहाँ में बी नहीं दे सकते, तो हम लोग के पास अभी बी को तो हम लोग काट दिया, तो अभी हम लोग के पास कितना लेटर बचे हुआ है, 2 लेटर है, ए एंड सी, ठीक है। तो 2 लेटर से ए और सी से हम लोग ए प्लेस को कितना वैसे फिल कर सकते हैं, इधर हम लोग यहाँ में ए दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ में सी दे सकते हैं, तो कितना हो गया, कितना हो गया, आइदर ए दे सकते हैं नहीं तो सी दे सकते हैं। तो हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, तो इसको हम लोग फिल कर सकते हैं 2 वे से, आइदर ए और सी, तो 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3 × 2, इसको बोलते हैं फंडामेंटल, एक प्रॉपर्टी है जिसका मैं लिखा दूंगा अभी, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मतलब ये दोनों को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 3 × 2 कितना आएगा 6, ठीक है। तो देखो 3 में से रिजल्ट सेम आया कि नहीं आया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ में भी 6 है, और हम लोग यहाँ में जो बॉक्स बना के किया यहाँ में भी रिजल्ट सेम ही आया, ठीक है। तो हम लोग कितना अरेंजमेंट कर सकता है, ठीक है, कितना अरेंजमेंट कर सकता है, 3, अगर 3 लेटर दिया हुआ है उसमें से 2 करके लेने से, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है और 2 करके हम लोग अरेंज किया तो कितना अरेंज कर सकते हैं, 6 अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये शॉर्टकट बेसिस से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट तुमको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना दिया हुआ है और एट ए टाइम कितना लिया है। तो एट ए टाइम वाला पार्ट जो है, एट ए टाइम कितना हम लोग को यूज़ करना है, 3 में से कितना कितना करके यूज़ करना है। तो ये जो एट ए टाइम वाला पार्ट है इतना बॉक्स हम लोग को बनाना है, ठीक है। उसके बाद 3 में से हम लोग के पास 3 लेटर है, तो फर्स्ट प्लेस को हम लोग कितना वैसे फिल कर सकते हैं, 3 में से, बिकॉज ए भी पुट कर सकते हैं, बी भी पुट कर सकता है, ए सी भी पुट कर सकते हैं, तो 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो तीनों में से कोई एक हम लोग यहाँ में पुट कर दिया सपोज, तो अभी ये वाला फिक्स, तो ये वाला पार्ट तो ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो अभी इसमें कितना वैसे फिल कर सकते हैं, बाकी 2 लेटर बचे हुए हैं, तो आइदर ए ही हमें फिक्स कर सकते हैं, नहीं तो बी सी हमें फिक्स कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 वे से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अंदर में क्या, ये बॉक्स में क्या फिल किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़, क्योंकि ये वाला चीज़ को मल्टीप्लाई कर देने से हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा कि कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये 3 × 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 पॉसिबल है, 1 2 3
4 5 6, ठीक है। अभी देखो और एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। ये वाला केस में इसमें मैंने क्या किया, और एक केस लिया था 3 में से 3। अभी एट ए टाइम अगर 3 लिया, तीन टोटल 3 था, 3 में से टोटल 3 को ही ले लिया था, ये वाला केस। अभी इसको डिस्कस करेंगे, इसको नहीं, ठीक है। इसमें भी कितना आया था, 1 2 3 4 5 6 ही आया था, ठीक है। तो देखो एट ए टाइम हम लोग अगर 3 ले लिया तो बॉक्स कितना बनाना पड़ेगा, 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 3 बॉक्स बना लिया तो हम लोग के पास टोटल लेटर कितना है, 3 है। तो थ्री लेटर में से मतलब ए बी सी यूज़ करके हम लोग फर्स्ट प्लेस को कितना वैसे फिल कर सकते हैं। हम लोग के पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो ए यहाँ में पुट कर सकते हैं या बी यहाँ में पुट कर सकते हैं या सी। तो ओवरऑल इसको कितना वैसे फिल कर सकते हैं, हम लोग के पास 3 ऑप्शन है, तो 3 वेज, ठीक है। तो 3 वैसे फिल कर सकते हैं। अभी किसी एक तो यहाँ में पुट करना होगा। सपोज हम लोग एक को यहाँ में फिल कर दिया, किसको फिल कर दिया मालूम नहीं, ए या बी या सी, दोनों तीनों में से कोई एक को फिल कर दिया, ठीक है। तो अभी बचा कितना है, जिसको यहाँ में फिल कर दिया वो तो इधर नहीं आ सकते बिकॉज रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ में जिसको भी फिल कर दिया, सपोज सी को फिल कर दिया, ठीक है। सपोज अगर सी को फिल कर दिया तो सी अभी यार यहाँ में सी को यहाँ में फिल कर दिया तो सी यहाँ में नहीं आ सकता। अभी क्या हम लोग के पास क्या है, ए और बी। तो ए और बी से ये सेकंड प्लेस को कितना वैसे फिल कर सकते हैं, 2 वेज, ठीक है। तो यहाँ में सपोज हम लोग अभी कोई एक नंबर को फिल कर दिया, 2 वैसे फिल कर सकते हैं, आइदर ए को फिल कर सकते हैं या बी को फिल कर सकते हैं। हम लोग को मालूम नहीं कि कौन सा यहाँ में फिल किया। सपोज मैंने लेके सपोज ए को फिल कर दिया, तो अभी ए भी यहाँ में चला गया, तो बचा कितना है, ओनली बी। सी को यहाँ में फिल कर दिया, ए को यहाँ में फिल कर दिया, अभी सी और ए तो रिपीट नहीं हो सकते, तो बचा कितना है, बी। तो ऑब्वियसली इसमें बी से ही फिल करना पड़ेगा, तो ओनली एक ही ऑप्शन है, तो इसको हम लोग 1 में से फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 × 3 कितना आएगा, 1 × 2 × 3 इक्वल टू कितना हो गया, 6, ठीक है। 6 आ गया। देखो कितना है, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग बिना किए जस्ट ये बॉक्स यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इससे भी शॉर्टकट होगा, बट अभी जस्ट मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉक्स वाला केस से हम लोग इसको विदाउट यहाँ में लिख के बहुत ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी भी बोला था कि अगर हम लोग के पास टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया है 7 नंबर, और एट ए टाइम हम लोग को लेना है कितना, सपोज 3 करके लेना है, ठीक है। अभी जो सॉरी 7 नहीं 8 लिया था ना मैंने थोड़ा देर पहले, जो मैंने बोला था अप टू एफ तक 8 लेटर है, उसमें से 3 करके लेना है। देखो कितना आएगा, बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। 3 बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस को हम लोग के पास कितना लेटर है, 8 लेटर है, तो 8 में से कोई भी हमें डाल सकता है। तो हम लोग के पास कितना ऑप्शन है, 8 वे से हम लोग इसको फिल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ में जो 8 लेटर है ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ से ए या बी या सी कोई भी पुट कर सकते हैं, तो 8 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 8 लेटर में से कोई एक लेटर को यहाँ में फिल कर दिया, ठीक है। कोई एक लेटर को फिल कर दिया, हम लोग नहीं जानते कि किसको फिल कर दिया। तो अभी हम लोग के पास कितना लेटर बचा हुआ है, एक लेटर तो यहाँ में चला गया, तो 8 में से एक यहाँ में चला गया, तो अभी हम लोग के पास 7 लेटर बचा हुआ है। तो 7 में से कोई भी हम लोग यहाँ में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास कितना ऑप्शन है, 7 वे हम लोग इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ में भी कोई एक लेटर चला जाएगा। तो अभी हम लोग के पास कितना लेटर बचा हुआ है, 7 था, 7 में से एक तो यहाँ में चला जाएगा, कौन गया मालूम नहीं है, ए बी सी डी ई एफ में से कोई एक चला गया, कोई एक यहाँ में चला गया, कोई एक यहाँ में चला गया। तो अभी हम लोग के पास कितना बचा हुआ है, 2 तो चला गया, 8 था, ओवरऑल 2 लेटर चला गया, तो अभी हम लोग के पास कितना बचेगा, 6। तो इस प्लेस को हम लोग कितना वैसे फिल कर सकते हैं, 6 वैसे, ठीक है। तो अभी देखो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 7 × 8, ओके, इस जगह कितना आएगा, 6 7 × 42 × 8, 8 2 × 16, 32 + 33, देखो 336 इतना हम लोग अरेंजमेंट कर सकता है विदाउट रिपीटिशन। रिपीटिशन करने से तो और भी ज़्यादा होगा, विदाउट रिपीटिशन हम लोग इतना 336 बनेगा। तो इतना कैसे लिखेगा, तो लिखने के लिए बहुत टाइम चाहिए, समझ में आएंगे ना। और वो भी 336 तुम अगर लिखोगे, फर्स्ट ए को मैंने लिखा, फिर बी को लिखा, फिर सी को लिखा, फिर ई को, फिर एफ को, फिर एफ आ गया, ऐसा करके इतना इजी नहीं है इसको लिखना। 336 लिखोगे तो कोई एक नंबर छूट जाएगा, कोई कौन किसको लिखा किसको नहीं लिखा, कन्फ्यूजन है। तो प्रैक्टिकली लिखने में बहुत प्रॉब्लम है इसको। तो हम लोग बट अगर ये प्रोसेस यूज़ किया तो एकदम इजीली निकल लिया कि हम लोग के पास अगर 8 लेटर है, उसमें से अगर 3 लेटर को लेके अरेंज किया, तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हम लोग कितना ऐसा अरेंजमेंट बनेगा, 336 अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इसका ऊपर ही बेस है, ठीक है। तो ये है रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए। बट अगर मैंने अभी जो दिखाया था ए बी और सी, इसमें से अगर रिपीटिशन अलाउड ले लिया,
अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए तो क्या आया था, ए बी दो दो करके लिया तो ए बी बी सी सी ए, फिर बी ए सी बी ए सी, ठीक है, ये था रिपीटेशन नॉट अलाउड। बट अगर रिपीटेशन अलाउड है तो उसमें और 3 आ जाएगा, जैसे कि हम लोग अगर ए ले लिया, इसमें रिपीटेशन अलाउड है, बी बी एंड सी सी। रिपीटेशन अगर अलाउड है, सपोज क्वेश्चन में बोल दिया कि रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब एक लेटर को हम लोग 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये ए बी बी और सी भी आ जाएगी। ये 6 तो रहेगा ही, उसके साथ ये तीनों भी आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, ठीक है। तो अभी उसी प्रोसेस में मैं इसको करता हूँ, रिपीटेशन अलाउड वाला। टोटल नंबर हम लोग के पास 3 है, एट ए टाइम कितना लिया, 2 लिया, तो बॉक्स कितना ड्रॉ करना होगा, 2 ड्रॉ करना होगा। तो फर्स्ट प्लेस को कितना वैसे फिल कर सकते हैं, हम लोग के पास 3 लेटर है ए बी सी, तो ये हमें ए भी पुट कर सकते हैं या बी भी पुट कर सकते हैं या सी भी पुट कर सकते हैं। तो 3 वे से हम लोग इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो लास्ट के जैसे कोई एक नंबर तो हम लोग यहाँ में पुट करेंगे, ये बॉक्स में फिल करना होगा कोई एक नंबर को, सपोज बी को ही फिल कर दिया, ठीक है। बट अभी क्या देखो, लास्ट जो अभी रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या था कि जो यहाँ में पुट किया उसको हम लोग यहाँ में पुट नहीं कर सकता था। बट अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग जो यहाँ में पुट किया उसको यहाँ में पुट कर सकते हैं, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। क्योंकि यहाँ में ए वाला भी है, बी वाला भी है, तो रिपीटेशन अलाउड है। तुम जो इसको यहाँ में पुट किया उसको हम लोग यहाँ में भी पुट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को यहाँ में कितना वैसे फिल कर सकते हैं, तो हम लोग के पास कितना लेटर है, ओवरऑल 3 लेटर ही है, क्योंकि बी ए और सी तो है ही, ए और सी तो है ही, और बी भी है, बिकॉज बी को हम लोग यहाँ में पुट किया, बट एज रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड दिया हुआ है, तो इसलिए जो यहाँ में पुट किया उसको भी हम लोग यहाँ में पुट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग के पास ये 3 अगेन ये तीनों नंबर है, तो हम लोग इसको भी कितना वैसे फिल कर सकते हैं, 3 वैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 कितना आ रहा है, 9, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मतलब एकदम इजीली देखोगे तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होने से, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड दिया हुआ है तो यहाँ से एक एक कम होते जाते हैं नंबर। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में अभी मैंने दिखाया था, अभी 3, उसके बाद कितना आता है 2, उसके बाद 1, ऐसा करके जाता है, मतलब 1 लेस होते जाता है एवरी स्टेप में। बट रिपीटेशन अलाउड अगर है तो ये लेस नहीं होगा, जो यहाँ में जो टोटल नंबर है वो सारा बॉक्स में वही आएगा, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में ये तीनों नंबर से फिल कर सकते हैं, सेकंड प्लेस भी ये तीनों नंबर से फिल कर सकते हैं, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है। जिसको हम लोग यहाँ में दिया वो यहाँ में भी दे सकते हैं। अगर यहाँ में और एक बॉक्स लिया होता, अगर हम लोग एट ए टाइम 3 करके लिया होता, तब भी यहाँ में हम लोग यहाँ में सपोज मैंने ए दे दिया, तो यहाँ में भी ए को दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, तो ये भी 3 वे से होगा, ठीक है। मतलब तीनों में भी बी दे सकता है अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इसलिए ये भी 3 वे होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 वे होगा। तो 3 × 3 × 3, अगर एट ए टाइम 3 करके लिया होता तो ये आ जाता 27 अरेंजमेंट हम लोग बना सकते हैं, अगर एट ए टाइम 3 करके लिया होता तो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि अगर सपोज तुम्हारे पास तुमको दिया है कि 3 लेटर, तीन नंबर दिया हुआ है, इसमें से हम लोग कितना 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, ऐसा 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से अगर 8 लेटर वाला 5 डिजिट वाला कितना नंबर हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर जो है 5 डिजिट वाला होता है, व मोबाइल नंबर जो है 10 डिजिट वाला होता है, तो इसमें से कितना मोबाइल नंबर हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ से भी निकलता है, ठीक है। जो मोबाइल व रिचार्ज वाउचर हम लोग यूज़ करते हैं, हमें कितना 14 डिजिट वाला रिचार्ज वाउचर होता है, व अगर आधार कार्ड देखो हमें भी बहुत डिजिट होता है, ठीक है। तो उस टाइप का मतलब ऐसा अगर कुछ जगह में जैसे कि नंबर को जब देखो कि एयरटेल नंबर में फर्स्ट प्लेस क्या आता है 9954, उसके बाद बाकी का 6 नंबर होते हैं। तो अगर 9954 को अगर हम लोग फर्स्ट 4 प्लेस में रख दिया और बाकी प्लेस में डिफरेंट नंबर लिया, तो उसमें से हम लोग कितना नंबर बना सकते हैं। तो उसको यूज़ करके हम लोग बता सकते हैं कि एयरटेल जो ये कोड है, इसको कोड को यूज़ करके हम लोग कितना एयरटेल वाला मोबाइल नंबर बना सकते हैं, ठीक है। जियो का देखोगे तो 700 ऐसा कुछ 84 ऐसा कुछ कोड रहता है। तो उस कोड रहता है बिकॉज वो डिफरेंट कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको यूज़ करके हम लोग कितना मोबाइल नंबर बना सकते हैं, रिचार्ज वाउचर। और अगर दूसरा भी देख सकते हो, जैसे कि अगर तुम एंटीवायरस ये सब जब डाउनलोड करोगे तो उसका एक लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस के लिए भी एक कोड होता है कीवर्ड, और कीवर्ड को बनाने के लिए भी ये सारा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ जो है बहुत जगह में यूज़ होता है, प्रैक्टिकली तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं
अभी एक्सरसाइज में से एक प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, ठीक है, तुम लोग ट्राई करना। सेम यही प्रोसेस है जो मैंने अभी भी कराया था। इसमें देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है, हम लोग के पास कितना दिया है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर दिया गया है और रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड नंबर 1 में, नंबर 2 में बोला है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। और 3 डिजिट नंबर बनाना है, हम लोग का वो दिया गया है 5 नंबर, ठीक है, टोटल 5 नंबर दिया गया है, मतलब n का वैल्यू 5 है और एट ए टाइम कितना लेना है 3, मतलब r का वैल्यू 3 है, ठीक है, एकदम ईजी है। देखो ठीक है, n का वैल्यू कितना है क्वेश्चन नंबर 1 में देखा जाता है। टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, टोटल डिजिट व नंबर, टोटल नंबर n का वैल्यू कितना दिया है 5, ओके, एंड टेकन एट ए टाइम, टेकन एट ए टाइम, टेकन एट ए टाइम, r का वैल्यू कितना दिया है, एट ए टाइम कितना है 3 डिजिट नंबर बोला है तो इसलिए 3, ठीक है। तो अभी इसमें बॉक्स बनाओ, कितना बॉक्स बनाना होगा, अभी इसमें बॉक्स कितना बनाना होगा, आर का ऊपर बेस करके 3 बॉक्स बनाना होगा, ठीक है, 3 बॉक्स बनाना होगा। तो नंबर 1 में बोला है कि रिपीटेशन इज अलाउड, सो नंबर 1 if repetition is, number 1 is repetition is allowed, since repetition is allowed, so therefore ये जो यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस ये है 10th और ये है 100th प्लेस, ठीक है, उसके आगे जाएगा तो 1000 प्लेस, ठीक है। सो therefore यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड, इसे रिप्रेजेंटेशन कर देना यूजिंग कितना नंबर है हम लोग के पास, यूजिंग 5 नंबर, यूजिंग 5 नंबर इन, ये बॉक्स ड्रॉ करना है या बॉक्स को करके दिखा देना है, या बॉक्स ड्रॉ करना है और ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना होगा। सो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड यूजिंग 5 नंबर इन हाउ मेनी वेज, 5 नंबर है तो फर्स्ट प्लेस को हम लोग 5 वे से फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर है, हम लोग के पास क्या क्या है 1 2 3 4 5, तो हमें 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, ठीक है। सो इन 5 वेज, यूजिंग 5 नंबर्स इन 5 वेज, ठीक है। तो इसको किसी एक नंबर से फिल कर दिया, अभी इसको तो रिपीटेशन तो अलाउड बोला है, सो एज रिपीटेशन अलाउड, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि 10th प्लेस कैन बी फिल्ड, सिमिलरली 10th प्लेस कैन बी फिल्ड, 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कितना होगा रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ में जो दिया उसको यहाँ में भी दे सकते हैं, तो हम लोग के पास और यहाँ में जो भी दिया उसको छूट के बाकी 4 तो है ही, और ये वाला भी दे सकते हैं, तो ओवरऑल कितना दे सकते हैं 5 को 5 ही यहाँ में डाल सकते हैं, यहाँ में 1 को भी पुट कर सकते हैं, 2 को भी पुट कर सकते हैं, 3 को भी पुट कर सकते हैं, 4 को भी पुट कर सकते हैं और 5 को भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज जो भी यहाँ में डाला, सपोज यहाँ में अगर 4 को डाला तो 4 को यहाँ में भी दे सकते हैं, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड, तो इट इज़ 5 वे वी कैन फिल्ड, ठीक है। तो इसको भी 5 वे, और सिमिलरली 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन, क्या होगा जो जिसको यहाँ में फिल किया उसको यहाँ में भी फिल कर सकता है, तो इसलिए इसको भी 5 वेज, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड, जो यहाँ में दिया उसको हम लोग यहाँ में भी दे सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल 3 डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर इफ रिपीटेशन इज अलाउड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 125, तो ओवरऑल 125 3 डिजिट नंबर हम लोग बना सकते हैं। देखो 5 मिनट्स भी नहीं लगा हम लोग इसको निकालने के लिए, ठीक है। और अभी अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है, नॉट अलाउड होता, नंबर 2 वाला नॉट अलाउड, तब क्या हो जाता, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वे, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि हम लोग के पास 5 लेटर है, 5 नंबर है, तो इसमें से कोई एक पुट कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ में 4 को पुट कर दिया, तो जो अभी रिपीटेशन नॉट अलाउड है ये नंबर 2 केस में, तो जिसको यहाँ में पुट किया वो यहाँ में पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास कितना रहेगा 5 था, यहाँ में से 1 चला गया, तो अभी 4 लेटर से 4 नंबर से हम लोग के पास, तो सेकंड प्लेस को हम लोग कितना वैसे फिल कर सकते हैं 4 वे से फिल कर सकते हैं, सेम टू सेम लिखना 4 वे, ठीक है। फिर यहाँ में कोई एक नंबर को दे दिया, तो अभी ये दोनों को इधर नहीं दे सकते, तो 5 था यहाँ से 2, एक को यहाँ में दे दिया, एक को यहाँ में दे दिया, कितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है,
तो इसको कितना वैसे फिल कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं 3 वेज, ठीक है। इफ़ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नंबर 2 वाला, हाँ। तो इफ़ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन इट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड देयरफॉर फॉलोइंग व्हिच, हमें लिख देना फॉलोइंग व्हिच, मतलब इसको फॉलो करके फॉलोइंग व्हिच मतलब फॉलोइंग यूनिट प्लेस, हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्लेस को हम लोग कितना वैसे फिल कर सकते हैं 4 वे से, कैन बी फिल्ड इन 4 वे एंड सिमिलरली 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, ठीक है, 3 वेज। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 60, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा 60। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 125, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 60, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 125 नंबर हम लोग 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं एंड रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड है तो 60 नंबर हम लोग 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 1 तक ही करना। 3 में से हम लोग कर पाओगे, 3 को हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर बोल दिया, ठीक है। ट्राई करना। इवन नंबर के केस में मैं बोल देता हूँ इवन नंबर होने से ये यूनिट प्लेस क्या होना पड़ता है, इवन होता है, इवन होना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। इसको छोड़ो 7.1, तुम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 को ही करना, इक्वेशन नंबर 1 को करो, ठीक है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेगा और इसके एग्जांपल्स को भी करने के लिए ट्राई करो। ये जो एक्सरसाइज है इसका एग्जांपल को भी करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। ये जरा एग्जांपल्स दिया हुआ है, ये एग्जांपल्स को भी करने के लिए ट्राई करो। और एक चीज़ है, ये चीज़ को लिख लेना, ये जो मैंने अभी बोला था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल मतलब ये वाला चीज़ है, if an event can occur in m different ways and following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence in the event will be m into n। तो मैंने ये अभी जो बॉक्स बनाया था इसमें मैंने लिखा था 3, इसमें 2, तो मल्टीप्लाई किया था 6। सिमिलरली यहाँ में भी वही बोला कि इफ़ एन इवेंट, तो ये एक इवेंट है, इफ़ एन इवेंट ऑकर इन m ways एंड अनदर इवेंट, ये अनदर इवेंट है मतलब अनदर प्लेस है जिसको फिल कर सकते हैं हम लोग n वे से, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो हेडिंग में लिखना द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिख के इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। और एक है सिमिलरली इसको और एक चीज़ इसमें देख लो, इफ़ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग व्हिच, मतलब इसका ऊपर डिपेंड करके इसको, क्योंकि यहाँ में जो फिल कर सकते हैं उसको यहाँ में नहीं दे सकते बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर सॉरी रिपीटेशन नॉट अलाउड होने से इसमें जो है उसको यहाँ में नहीं दे सकते, बट रिपीटेशन अलाउड होने से यहाँ में जो है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऊपर डिपेंड करके इसको हम लोग फिल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बोला है कि फॉलोइंग विच, मतलब इसका ऊपर फॉलोइंग करके इसको, ठीक है। तो इफ़ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज एंड फॉलोइंग दिस अनदर इवेंट कैन ऑकर इन n डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट इज m क्रॉस n, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो m क्रॉस n होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। और एक होता है एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। एडिशन प्रिंसिपल के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। एडिशन प्रिंसिपल मतलब अगर दोनों डिफरेंट केस है, सपोज एट ए टाइम हम लोग 2 लिया था तब कितना आया था 6 आया था। एट ए टाइम 3 में से ABC से 3 लेटर था, उसमें से 2 करके लेने से 6 आया था, और एट ए टाइम ABC उसमें से 3 करके लेने से भी 6 आया था। तो 2 करके लेने से 6 आया, 3 करके लेने से 6 आया। तो ये दोनों डिफरेंट केस है। तो ये दोनों अगर बोला कि टोटल कितना हम लोग बना सकते हैं 2 करके लेके या 3 करके लेके, तब हम लोग क्या करते हैं दोनों को प्लस करते हैं, तो उसको बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो एडिशन प्रिंसिपल के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आज इसको लिखना और ये एक्सरसाइज को एग्जाम्पल्स को करने के लिए ट्राई करना और क्वेश्चन नंबर 1 को मुझे करके सेंड करना, ओके। सो रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड ऑल्सो आई विल टेक वन एग्जामिनेशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, उसको भी अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है। So thank you students, next class we will discuss.